Now, Delhi LG VK Saxena has directed the police commissioner and chief secretary to undertake slew of precautionary and preventive measures following the recent Red Fort terror blast. In a separate written communication to the CP and CS from the LG Secretariat, directions have been issued to the police to maintain a digital record of entities purchasing and selling ammonium nitrate beyond a certain threshold, including photograph of buyers and sellers, apart from other relevant details. They have also asked them to hold a consultation exercise with heads of social media platforms, including Meta, Twitter, which is X, etc., for a scientific tracking of radicalized content aimed at brainwashing citizens. Apart from this, they've also asked to strengthen human and technical intelligence with a focus on vulnerable areas prone to radicalization. Community outreach and citizen engagement should also be enhanced for more robust preventive policing. The administration has been asked to create a central data repository containing records of doctors and paramedical staff engaged by hospitals, especially private, along with details of their medical degrees. In cases where medical professionals have secured degrees from foreign countries, information should also be shared with the police department for secondary background checks. They have also been asked to hold a consultation exercise with all digital platforms and financiers engaged in sale and purchase of vehicles, especially second-hand vehicles. Clear directions should be given that under no circumstances will vehicles be allowed to ply where actual owner is different from the registered owner. This problem is reportedly most acute in cases of auto rickshaws where the permit holder is different from the actual owner. So clearly we can see that these are a slew of directives that have come out from the Delhi LG VK Saxena, and he has given these directions in separate written communications to the CP and the CS. Joining us on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more details on the story. Javed, ये नए directions आ रहे हैं दिल्ली के LG के तरफ से, इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं, उनके बारे में हमें बताएं जरा। और देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी हाल ही में हुए दिल्ली के लाल किले के पास जो टेरर मॉड्यूल के दरमियान जो लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट है, जिस तरीके से एक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एहतियात और रोकथाम के लिए एक ऑर्डर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाए। अमोनियम नाइट्रेट की जो एक निश्चित जो एक सीमा होती है, उससे ज्यादा खरीद बिक्री वाले जो व्यक्ति या संदिग्ध हैं उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए। खरीदार और विक्रेता जो हैं दोनों का फोटोग्राफ पहचान और इससे जो जरूरी जो रिकॉर्ड है वो होना जरूरी है। सोशल मीडिया के लिए भी उन्होंने जो कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया है उसके लिए भी उन्होंने एक उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जिस तरीके से मेटा है, ट्विटर है, इसके अलावा तमाम अलग अलग जो सोशल मीडिया है उनके जो ऑफिसर्स हैं जो इंडिया के जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ एक लगातार कोऑर्डिनेशन, एक मीटिंग होती रहे और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी जो है उनको भी मजबूत करने के लिए उन्होंने एक पूरा रिकॉर्ड कहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आजकल टेक्निकली सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर जिस तरीके से पूरी नजर रखी जाती है उसका एक कोऑर्डिनेशन मजबूत रखा जाए और स्पेशली तरीके से जो सेंसिटिव इलाका है उस पर ज्यादा ध्यान रखा जाए और वहां पर जो है अपने फोकस को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके के जो टेरर मॉड्यूल को लेकर जो एक्टिविटी हुई थी वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रभावित होती है और ऐसे कोऑर्डिनेशन के बाद इन चीजों पर जो है वो काफी रोक लग सकती है और इसका इफेक्टेड हो सकता है, जिससे कि इस तरह की जो इंसिडेंट है वो आगे ना हो। जी जावेद, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि ओल्ड व्हीकल्स के बारे में बोला गया है कि ओनर जो है और जो करंट खरीदार है उसके बारे में भी डिटेल्स रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोग्राफ्स ऑफ जो लोग अमोनियम नाइट्रेट ले रहे हैं वो सब उनके डिटेल्स, ये सब भी जानकारी अब रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है।
जी बिल्कुल, दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पूरा एक ऑर्डर दिया है, जिसमें होम सेक्रेटरी भी जो है दिल्ली सरकार के, उनको भी एक मीटिंग कोऑर्डिनेशन के लिए कहा है, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया से लेकर जो इंटेलिजेंस जो विंग है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए, और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट की जो खरीद बिक्री है उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का एक पूरा जो कंसाइनमेंट है वो मिला था एक बड़े तादाद में, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला, और इसको लेकर जो है लोकल इंटेलिजेंस इसमें बेहद अहम रोल अदा करता है। अगर हम बात करें आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की या टेक्निकली इंटेलिजेंस की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्विटर और इंस्टाग्राम या फिर हम मेटा की बात करें, तो इस पर भी कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसी चीजों को लेकर, क्योंकि आजकल जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए ही आपस में अपने जो एसोसिएट्स हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस तरह की कनेक्टिविटी जो है वो इनके ऑफिसर से कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेहद मायने रखेगा। तो इसलिए साफ कहा गया है कि दिल्ली के एलजी ने ये कहा है कि जिस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, स्टेट पुलिस अलग अलग यूनिट जो है वो इसमें लगी हुई है, तो एक कोऑर्डिनेशन से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन लोकल, उसके बाद आपको अमोनियम नाइट्रेट जहाँ पे बिकता है, जो खाद सामग्री भी इस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एक निश्चित खरीद बिक्री तय हो, और किसी भी संदिग्ध को जो है ये ना मिले। अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी पूरी रिकॉर्ड रखी जाए, डिजिटल उसकी तस्वीर है, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जी बिल्कुल जावेद, हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव वन मोर स्टोरी।